Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, the Earth and its satellites. The Earth. We all live on planet Earth. It is our home. It is one of the 8 planets of the solar system. Its surface is made up of land and water. 3/4 part of the land surface is covered with water and 1/4 is land. It is surrounded by a thick envelope of air extending up to a height of about 600 kilometers. The envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. हम सभी planet earth में रहते हैं, ये हमारा घर है. इसका जो surface है वो land and water से बना है. तो जो 3/4 part है land surface का वो आपका covered है water से and 1/4 part जो है वो land है. इसके अलावा एक थिक एनवलप से कवर्ड है ऑफ एयर जो कि आपका एक्सटेंड है अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर्स. तो इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर. शेप ऑफ द अर्थ. The earth is round in shape. It has 2 poles. It is slightly flattened at the poles like an orange. It has a diameter of about 13,000 kilometers. Ferdinand Magellan and his sailors sailed on in the same direction, and in a few years they reached the place from where they have started. This showed that the earth is round, but it was not clear whether it was round like a plate or an orange. देखिए अर्थ का जो शेप है वो राउंड है. इसके 2 पोल्स हैं. ये पोल्स भी ना थोड़ी सी फ्लैटेंड है, जैसे आपका ऑरेंज होता है. इसका डायमीटर है लगभग 13,000 किलोमीटर. फर्डिनेंड मैगेलन एक सेलर थे. ये अपने कुछ सेलर्स के साथ इन्होंने सेल किया सेम डायरेक्शन में, और कुछ साल के बाद जहाँ जिस प्लेस से इन्होंने शुरू किया था ये वहीं पहुँच गए. तो इससे क्या शो हुआ कि अर्थ जो है वो राउंड है, बट ये क्लियर नहीं था उसकी ये प्लेट की तरह राउंड है या फिर ऑरेंज की तरह. When a ship comes sailing towards the shore, we foresee only stop. Slowly its lower parts come in view. It appears that the ship is coming from a lower place to upper place. This shows that the surface of the earth is raised high. देखिए जब कभी भी जो शिप है ना वो शोर की तरफ सेल करती हुई आती है तो सबसे पहले हमें उसे टॉप दिखाई देता है, राइट. फिर धीरे धीरे उसका जो लोअर पार्ट है वो नज़र आता है. ऐसा लगता है कि जो शिप है वो एक लोअर प्लेस से अपर प्लेस पे आ रही है. तो ये क्या शो करता है कि जो अर्थ का सर्फेस है दैट इज रेज्ड हाई. Photographs of the earth taken from spaceships have shown that it is round like an orange. At one time, we can see only a very small part of big round earth. It appears to us like a big ball would appear to an ant. तो देखिए जब फोटोग्राफ्स लिए गए स्पेसशिप से तब ये पता चला कि जो अर्थ है वो राउंड है एक ऑरेंज की तरह. एक टाइम पे ना हमें इस बड़ी सी अर्थ का सिर्फ छोटा सा पार्ट नज़र आता है, तो एक बॉल की तरह नज़र आता है, राइट. तो बॉल कैसे, जैसे एक चींटी है उसको बॉल नज़र आएगी ना, ऐसे ही. अ लुक इनटू द अर्थ. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers. Outermost layer is called crust. We all live on the earth's crust. It is made up of rocks. It has mountains, deserts, plains and oceans. Below the crust is another layer known as mantle. It is rigid. Mantle is followed by a core. Core exists in a molten state. It is too hot to imagine. Its temperature is around 4,000 degrees Celsius. Earth देखिए 3 layers से बना है. ये आपको 3 layers नज़र आ रही हैं. Crust, mantle and core. हम सभी अर्थ के क्रस्ट पे रहते हैं, राइट. ये आउटर मोस्ट लेयर है आपकी, ये रॉक से बनी है, इसमें माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स है. क्रस्ट के नीचे आपके है मेंटल, राइट. ये थोड़ा सा रिजिड है. और मेंटल के बाद आपके सबसे नीचे आता है कोर. तो कोर जो है आपके मॉल्टन स्टेट में पाई जाती है और इसका टेम्परेचर कुछ बहुत ही ज़्यादा है, राइट. रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. The earth revolves around the sun. This movement is called revolution. It takes 365 1/4 days to complete one revolution. It causes change of seasons. अब देखिए जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. दिस मोमेंट को कहा जाता है रेवोल्यूशन एंड इसको रिवॉल्व करने में टाइम लगता है, राइट. एंड आपको पता है रेवोल्यूशन की वजह से जो सीजन में चेंजेस आते हैं. While revolving around the sun, the earth spins on its own axis also. This spin is called rotation. It spins from west to east, completing one rotation in 24 hours. The rotation of the earth on its axis causes day and night. देखिए रिवॉल्व करते टाइम जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे भी घूमती है,
राइट तो इसे कहा जाता है रोटेशन, राइट ये स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट एंड वन रोटेशन कंप्लीट होता है इसका 24 आवर्स में, और इस रोटेशन की वजह से आपके डेज एंड नाइट होते हैं, डे एंड नाइट. The sun shines all the time. As the earth is round, only half of it faces the sun at a time. This part in light has day. The other part remains in darkness and has night. When we have day in our country, it is night in America. When we have night time here, there is day in America. As the earth rotates from west to east, the sunlight moves from east to west. Therefore, eastern regions get daybreak earlier than western regions. At any place, the sun rises in the east and sets in the west. सन देखिए पूरे टाइम शाइन करता है, आपकी अर्थ राउंड है तो हाफ जो है इसका वही फेस करता है सन को, तो जो पार्ट सन का फेस हो रहा है उसमें आपका डे है. फॉर एग्जाम्पल देखिए दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर सन, राइट. अब सन की जो लाइट है वो एक पार्ट पे पड़ेगी, तो जिस पार्ट पे पड़ रहा है यहाँ पे आपका डे है एंड द अदर हाफ यहाँ पे आपका क्या है, नाइट, राइट. तो देखिए जब हमारी कंट्री में दिन होता है तो अमेरिका में होता है नाइट, और जब हमारे यहाँ नाइट होता है तो अमेरिका में होता है डे. तो जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट तो सनलाइट जो है वो मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, इसीलिए जो ईस्टर्न रीजन्स हैं आपके उनका जो डे ब्रेक है वो वेस्टर्न रीजन से पहले हो जाता है. तो किसी भी प्लेस पे आपको पता है सन आपका ईस्ट में राइज करता है जबकि वो वेस्ट में सेट होता है. द ग्लोब. A model of the earth is called a globe. The globe is round like a ball, though the earth is like an orange. Locations of various countries, mountains, oceans, etc. are printed on its surface. It can be rotated on its axis. We can see formation of day and night on a globe by placing it near a light source. Rotate it and see how days and nights appear on it. अच्छा, अर्थ के मॉडल को कहते हैं ग्लोब, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अपने स्कूल्स में ज़रूर देखा होगा. ये आपका जो ग्लोब है ये राउंड होता है, जबकि आपको पता है अर्थ तो ऑरेंज की तरह होती है. ग्लोब में आपको अलग अलग कंट्रीज, माउंटेन्स, ओशंस ये सारे उसके सरफेस पे प्रिंटेड होते हैं, राइट. और ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है. आप डे एंड नाइट का फॉर्मेशन जो है आप ग्लोब में देख सकते हैं. कैसे? आप इसको लाइट सोर्स के पास लेके जाए, जैसे टॉर्च है या इस तरह से जो लैंप है, फिर उसके बाद आप रोटेट करेंगे और देखेंगे किस तरह से डेज एंड नाइट्स अपीयर होते हैं. यानी जिस पार्ट पे इसकी लाइट पड़ेगी वो डे एंड देन नाइट. फिर आप इसे रोटेट करेंगे तो जो नाइट वाला पार्ट है यानी जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है वो आपके लाइटेड पार्ट में आ जाएगा. The moon, the satellite of Earth. The Earth is a planet. It has no light of its own. The bodies which move around a planet are called its satellites. The moon is the only natural satellite of the Earth. It revolves around the Earth in about 28 days. It also rotates on its axis in nearly the same time as the Earth. Therefore, we always see only one side of moon. It is about 3,84,000 kilometers away from the Earth. अर्थ एक प्लैनेट है, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. जो भी बॉडीज या हेवनली बॉडीज इस प्लैनेट के राउंड मूव करते हैं, नॉट इस प्लैनेट बट कोई भी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के राउंड मूव करते हैं उसे कहते हैं सैटेलाइट. सो मून जो है वो एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. ये अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है अबाउट 28 डेज में. ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है नियरली सेम टाइम पे जितने पे अर्थ करती है. तो इसीलिए हमें मून का जो है हमेशा एक साइड नज़र आता है, और इसका डिस्टेंस देखिए इतना है फ्रॉम अर्थ. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. वी सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट. इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर. There are very high mountains and deep craters or pits in the ground. Some of the mountains are even taller than those on Earth. अच्छा, मून की खुद से लाइट नहीं होती है बट फिर भी ये चमकता है ना, और हमें ये दिखाई देता है क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें कोई वाटर नहीं है. इसमें इनफैक्ट हाई माउंटेन्स एंड डीप क्रेटर्स जिसे हम गड्ढे कहते हैं, और कुछ माउंटेन्स जो हैं इवन वो इतने टॉलर हैं जितने आपको अर्थ पे मिलेंगे उससे भी ज़्यादा टॉल. फेजेस ऑफ द मून. As the position of the earth changes, we see the moon in different phases. The shape of moon appears to change from full moon to no moon and from no moon to full moon. In between these two positions, we see only a part of the lighted surface of the moon which seems to change its shape from day to day. अच्छा, जैसे ही अर्थ की पोजीशन चेंज होती है तो हमें मून के डिफरेंट फेजेस नज़र आते हैं. जो मून का शेप है हमें ऐसा लगता है
वो चेंज हो रहा है फ्रॉम फुल मून टू नो मून एंड फ्रॉम नो मून टू फुल मून. इन बिटवीन ये जो दो पोजिशंस होती हैं उसमें हमें सिर्फ जो लाइटेड सरफेस है मून का वो नज़र आता है, राइट. और हमें लगता है कि वो अपनी शेप जो है डे टू डे चेंज कर रहा है. तो ये देखिए, ये आपको फेजेस ऑफ मून दिए गए हैं. One half of the surface of the moon is always facing the sun and is lighted. On no moon night, moon is between the earth and the sun. Half surface of the moon is lighted, but its dark half faces the earth. Therefore, it is no moon day to us. On a full moon night, the earth is between the sun and the moon. Only half surface of the moon is lighted, but the entire lighted surface faces the earth. We see the lighted surface only, and it is full moon day to us. तो जो हाफ होता है सरफेस मून का वो हमेशा सन को फेस करता है और वो लाइटेड होता है. और नो मून नाइट पे जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में होती है. हाफ सरफेस जो मून का हो वो लाइटेड होता है, बट इसका जो डार्क हाफ फेस है वो फेस करता है अर्थ को, इसीलिए नो मून डे उस दिन होता है. फुल मून नाइट के दौरान क्या होता है, जो अर्थ है वो सन और मून के बिटवीन होती है, तो जो हाफ सरफेस है मून का वो लाइटेड होता है, बट जो इंटायर लाइटेड सरफेस होता है इसका वो अर्थ को फेस कर रहा होता है, तो इसीलिए हमें लाइटेड सरफेस नज़र आता है. एंड वो हमारे लिए फुल मून डे होता है. एस्ट्रोनॉमर्स. Scientists who study the stars and planets are called astronomers. They use special instruments like telescope to observe stars and planets. These telescopes are very big and kept in separate buildings called observatories. Looking through a telescope, the stars and the planets appear bigger and clear. Astronomers observe their movements and take photographs to find out their secrets. अच्छा, जो साइंटिस्ट स्टार्स और प्लैनेट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टेलीस्कोप, जिससे स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं. और ये टेलीस्कोप आपके काफ़ी बड़े होते हैं और उनको एक सेपरेट बिल्डिंग जिन्हें कि कहा जाता है ऑब्जर्वेटरीज, वहाँ रखा जाता है. तो जब आप टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तो जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं वो बिगर नज़र आते हैं और क्लियर नज़र आते हैं, राइट. तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके मोमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फोटोग्राफ्स लेते हैं. In the olden days, astronomers used to look at the stars through naked eyes. About 1500 years ago, there was an Indian astronomer named Aryabhatta. He said that the earth is round and it rotates on its axis. He also said that moon shines only when sunlight falls on it. Another Indian astronomer, Bhaskaracharya, lived 900 years ago. He discovered a method of finding out the motion of planets. पुराने ज़माने में क्या होता था कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है स्टार्स को देखते थे नेकेड आई के थ्रू. तो लगभग 1500 साल पहले एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट. उनका कहना था कि जो अर्थ है वो राउंड है और अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है. और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मून है वो तभी शाइन करता है बिकॉज सन की लाइट उस पर पड़ती है. एक दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे भास्कराचार्य. लगभग 900 साल पहले उन्होंने जो मोशंस ऑफ प्लैनेट है ना उस मेथड को फाइंड किया था. दिस स्पेस, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. द प्लेस बियॉन्ड द एयर इज द स्पेस. All stars and planets move in the space. They all apply force to attract other objects. A heavy star or planet has a greater force of attraction. This force of attraction is called gravitational force. देखिए, अर्थ ऐसे सराउंडेड है, वो प्लेस जो एयर के बियॉन्ड है दैट इज स्पेस. तो जितने भी आपके स्टार्स या प्लैनेट्स हैं वो स्पेस पे मूव करते हैं और वो एक फोर्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं. कोई भी हैवी स्टार या प्लैनेट है उसमें ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. The earth attracts us and all objects to it, so we cannot go beyond a limit from the earth. Special spaceships have been designed to go into the space. They are pushed beyond gravitational force by rockets which provide a very high speed and force to escape into the space. अच्छा देखिए, अर्थ जितनी भी चीज़ें ना सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हम एक लिमिट के बाद बाहर नहीं जा सकते अर्थ के. तो स्पेशल स्पेस शिप्स को डिज़ाइन किया जाता है स्पेस में जाने के लिए. ये क्या करते हैं कि इनको पुश किया जाता है बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय रॉकेट्स. फिर एक हाई स्पीड इनको प्रोवाइड की जाती है एंड फोर्स जिससे कि वो स्पेस में एस्केप हो जाते हैं. जर्नी टू द मून. A spaceship Apollo 11 took 3 American astronauts to the moon. One of them, Neil Armstrong, was the first man to step on the moon. This day was 21st July 1969.
एक स्पेस शिप अपोलो 11, इसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे। तो उनमें से एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा था। एंड 21 जुलाई 1969। लाइफ ऑन द मून। There is no air or water on the moon, therefore it has no life. By day, the moon becomes hot enough to boil water, while at night it cools enough to freeze air, if any. Day and night on the moon last about 14 days each. Gravitational pull of the moon is 1/6 part of the Earth. So when you go to the moon, you shall weigh only 1/6 part of your weight on the Earth. अब देखिए, मून पे ना एयर है ना वाटर है, तो वहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। और दिन में तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वाटर भी बॉयल हो जाए, और रात को ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। डे एंड नाइट जो मून पे हैं वो आपके 14 डेज़ के होते हैं। ग्रेविटेशन पुल जो है मून का वो अर्थ के कंपैरेटिवली 1/6 है, यानी कि अगर आप मून पे जाते हैं तो आपका वेट वहाँ पे जो अर्थ पे आता है उसका 1/6 आएगा। मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Scientists have designed and sent artificial satellites into space which revolve around the Earth. They have many instruments fitted on them. Satellites receive signals from the Earth and send signals back. They work automatically and there is no one on board. Scientists ने कुछ artificial satellites डिज़ाइन किए हैं, उनको भेजा गया है स्पेस में जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिटेड होते हैं। सैटेलाइट सिग्नल्स रिसीव करते हैं अर्थ से, फिर सिग्नल्स को भेजते हैं वापस। ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, मतलब वहाँ पे कोई है नहीं, राइट। Satellite provides us advanced information about weather. They also send television pictures from one part of the world to another part. A few satellites sent by India into space are Aryabhat, Bhaskar, Rohini, INSAT, etc. अब सैटेलाइट जो है हमें एडवांस इन्फॉर्मेशन देते हैं वेदर के बारे में, ये टेलीविजन पिक्चर्स को भी सेंड करते हैं वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट, राइट। आप लाइव मैच देख पाते हैं या कोई भी लाइव प्रोग्राम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स जो इंडिया के द्वारा भेजी गई है स्पेस में are these. Forget me not. The earth is round in shape like an orange. The surface of the earth is cool, but the core is very hot. The earth takes 1 year to complete one revolution round the sun. The earth rotates on its axis once every 24 hours. Day and night are caused by the rotation of the earth. The moon is a natural satellite of the earth. Remember that moon is the only natural satellite of the Earth. The moon rotates on its axis and revolves around the Earth in about 28 days. Due to changing position of the Earth, we see the moon in different phases. There is no life on the moon. The Earth has a strong gravitation force. Artificial satellites give advanced information about weather and transmit television pictures. Children, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड समझ आया होगा, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।